Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to see units of classification. In that mainly four topics we are going to see in this video, that is species, genus, family and order, or you can also say it as cohort. Now first we are going to see species. Now what is species? Okay, before I start with the actual lecture, now in last video if you see, I have told you something about category, taxon, or something about classification. Yes. Now, in category, if you see, we have seen kingdom, then division. We have seen class, subclass, series, order, family, genus, and species. So these terms, I hope that you have heard in last video. Now here we are going to see that what it is. Okay, species तो हमने सुना था कि बट वो एक्चुअल में होता क्या है ना. What is genus, what is family, these terms we are going to understand. Now first of all we are going to start with species. Species क्या होता है अभी? It is a principal natural taxonomic unit ranking below a genus and denoted by a Latin binomial unit of classification. Now what does this mean? Species जो है वो जीनस के बिलो आता है. ओके, इट इज बिलो द जीनस. नाउ स्पीशीज जो है वो सबसे लास्ट में आएगा और उसके ऊपर क्या रहता है? जीनस. सो now after this, and it is also denoted by Latin binomial. Now what does this mean? Binomial means what? Bi means what? Two, and nomial means what? Naming. Okay, name you can say. Binomial, in case of binomial, bi means two and nomial means naming. Yes. ना इट सिंपली मीन्स कि कभी भी हम लोग कोई भी स्पीशीज अगर उसको नेमिंग कर रहे हैं तो हमेशा दो नाम लिखे जाते हैं. द फर्स्ट वन इज जीनस एंड द सेकेंड वन इज स्पीशीज. नाउ so what it is a group of organisms that can interbreed under natural condition to produce fertile offspring. so अब ये वाले जो स्पीशीज हैं, स्पीशीज में क्या रहता है कि वो अगर वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, सो दे कैन इंटरब्रीड. इंटरब्रीड मीन्स व्हाट? दे कैन मेट एंड दे कैन प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है कि न्यू, देयर न्यू जनरेशन. ओके, और यू कांट से जनरेशन, आप लोग बोल सकते हैं कि बेबी. इफ वी कंसिडर अबाउट एनिमल, so we can say a small baby, and if we see about plants, then we can say new plant arises. Okay, now so it was thought to be an invisible, stable and static unit. so it was like कि ओके, अब ये जो स्पीशीज है ये क्या है? स्टेबल है, एक स्टेबल यूनिट है. बट इन मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या देखा गया है कि डिवीजन को भी डिवाइड किया गया है सब डिवीजन में. व्हाट इट इज डन कि डिवीजन को भी सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है. वी हैव सीन अबाउट फैकल्टेटिव टैक्सोनॉमी. ओके, सो सब डिवीजन किस में आ जाता है? फैकल्टेटिव में आ जाता है. नाउ स्पीशीज में भी क्या रहता है? सब स्पीशीज we have found out. Now varieties and populations are seen and given more importance. Yes. Now for example, if we see Mangifera indica. Now what is Mangifera indica? Common name क्या है इसका? Mango. Mangifera indica का common name है mango. What is Mangifera indica? It is botanical name of the mango. So ये जो Mangifera है, what it is? It is genus. Mangifera क्या है? Genus है, और indica क्या है? Species. Yes. अच्छा, one more thing I would like to tell you here itself कि कभी भी whenever we are writing any botanical name, तो वहाँ पे what we do is कि जो जीनस है we start it with capital letter. You can see here कि Mangifera जो है उसका M capital है, rest all other letters are in small. Yes. Now indica क्या है? It is a species. So species we always start with small letter only, और वो पूरा small में ही लिखा जाएगा. बट जीनस एंड स्पीशीज ये दोनों हमेशा याद रखना है कि सेपरेट वर्ड्स में लिखेंगे. ऐसा नहीं है कि दोनों को कंबाइन लिख दिया. ओके, अच्छा. नाउ वन मोर थिंग यू कैन ऑब्जर्व इज कि मैंने मैंजीफेरा इंडिका को इटैलिक में लिखा है यहाँ पे. ओके, सो नाउ यू विल हैव वन डाउट कि व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, व्हेन यू आर राइटिंग समवेयर, तो तब भी कैसे इटैलिक में लिखेंगे? किसी का हैंड राइटिंग इटैलिक में रहता है ऑलरेडी. सो इन दैट केस व्हाट वी डू इज व्हेनेवर वी आर राइटिंग इट विथ आवर हैंड, कोई भी बॉटनिकल नेम अगर आप अपने हाथ से लिख रहे हो पेपर पे, तो
उसे क्या किया जाएगा, जीनस और स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। ओके, एक साथ नहीं, सेपरेटली अंडरलाइन वी आर गोइंग टू डू, बट व्हेनेवर वी टाइप इट, कभी भी अगर उसको टाइप किया जा रहा है तो वहां पे वी यूज इटैलिक। ओके, font. Now next is about genus. Now what is genus? It is a taxonomic rank, we can say, or we can say category which is larger than species. ओके, स्पीशीज जो है वो सबसे लोवेस्ट है, उसके ऊपर क्या आएगा, जीनस. सो इट इज लार्जर देन स्पीशीज, यूज्ड इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड फॉसिल ऑर्गेनिजम्स. तो इसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फॉसिल ऑर्गेनिजम्स दोनों को क्लासिफाई करने में यूज किया जाता है. Now what is it is a group of species which is bearing close resemblance to the one another in their morphological characters. वो morphological means what, कि physically वो कैसा दिख रहा है. morphological means कि जो भी characters हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं. okay, physical characters जो भी है. so only physical characters we can observe with our eyes, so they are said to be as morphological characters, but they do not interbreed. अब ये जो genus है, if their species is different, so they will not interbreed. okay, उनमें mating नहीं होगी. now next is okay, so for example we are going to see tiger, leopard, lion, all three belong to same genus. okay, but that is panthera. tiger, leopard, lion जो है वो कौन से genus से belong करता है, panthera, but they do not interbreed. yes, so they have common characters, yet they are different from each other because their genus is same but species are different. So one more example I would like to give you, that is brinjal and potato. So what is genus? It is Solanum. okay, now next is family. So what is family? It is above, you can say, above genus. yes, so it is one of the major hierarchical taxonomic rank. ये क्या है, one of the major hierarchical taxonomic rank. and a family represents a group of closely related genera. जैसे कि जीनस जो है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही फैमिली क्या करती है, क्लोजली रिलेटेड जीनस को रिप्रेजेंट करती है. okay, for example if we see genera like hibiscus, then gossypium, sida, bombax, these included in the same family, that is malvaceae. okay, ये सब genera के जो ये सब जो genera है, they are included in the same family, that is family malvaceae. now cat also belongs to the family of leopard, tiger and lions. yes, now which family it is? It is Felidae. but dog belongs to a different family, that is Canidae. okay, now next is you can say next we are going to see is cohort, or you can say order. but before we see order, I would like to explain you about this structure. okay, it is a structure of ovary. now in this you can see these टू बलून लाइक स्ट्रक्चर. ओके, अच्छा, ये जो सर्कल है, सर्कल में पहले तो आप देख रहे हैं कि दो लेयर्स है, एक आउटर एक इनर. फिर उसके बाद आप लोग थोड़ा बलून जैसा स्मॉल स्ट्रक्चर देख रहे हैं. ओके, दो स्ट्रक्चर्स एक साथ प्रेजेंट हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, इसको क्या बोलेंगे, ओवरी. अब ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे, that is said to be as ovule. what it is said to be as ovule. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है सर्कुलर, उसे हम ये पूरा क्या बोलेंगे, ओवरी. और उसमें जो बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इट इज सेड टू बी एज ओव्यूल. अब ये जो ओव्यूल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है फ्यूचर में, सीड में. कभी भी आप जब सीड्स देखते हैं, कोई भी फ्रूट का जो सीड रहता है, वो कहाँ से डेवलप होता है, ओवरी से ही डेवलप होता है. not from ovary, it is from ovule. okay, ovule से डेवलप होते हैं सीड्स. now if you see this circular structure, वो पूरा क्या है, ओवरी है. तो वो ओवरी किस में फॉर्म हो जाती है, फ्रूट में. और ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है स्मॉल, वो किस में फॉर्म हो जाता है, इट इज ओव्यूल. वो किस में कन्वर्ट होगा, सीड में. ओके, क्लियर. ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड. एंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. now then if you see the next picture, it is of ये आप लोग आपको सबको पता होगा, लेडी फिंगर. that is it is a structure of लेडी फिंगर. so इसमें, अच्छा, ऐसी तो भिंडी सबने काटी होगी. yes, तो उसमें सीड्स भी दिखते हैं. अब ये जो सीड्स हैं, ये कहाँ से डेवलप हुए हैं,
ओव्यूल से। कहाँ से डेवलप हुए हैं? ओव्यूल से। और ये जो पूरी भिंडी है अपनी, ये किससे डेवलप हुई है? भिंडी मीन्स व्हाट? वो फ्रूटी है ना, तो वो कहाँ से डेवलप हुआ है? फ्रॉम दी ओवरी। ओके, नाउ व्हाई आई एक्सप्लेन यू दिस स्ट्रक्चर, यू विल अंडरस्टैंड इट in this order. Now, what is order? It is taxonomic rank which is used in the classification of organisms and recognized by nomenclature codes. Nomenclature codes मतलब क्या कि देखो अब यहाँ पे there are certain books, कुछ बुक्स होती हैं जिसमें सर्टेन रूल्स लिखे हुए होते हैं। वो रूल्स को रीड करके सी whenever we get something new plant, तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको समझ के we can compare it with that book and we can see कि ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, इसका जीनस क्या है, इसका स्पीशीज क्या है, वी कैन एवरीथिंग आइडेंटिफाई फ्रॉम दैट बुक, ओके, बाय कंपेयरिंग इट। सो एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। अब ये जो ऑर्डर है वो क्या है? क्लोजली रिलेटेड फैमिली से बनता है। नाउ दे शो डेफिनेट एफिनिटीज। डेफिनेट एफिनिटीज मतलब क्या? दे हैव कॉमन डिसेंट्स। डिसेंट्स मीन्स क्या कि उनकी जो व्हाट वी कैन से कि जहाँ से वो इवॉल्व हुए हैं वो क्या रहता है? कॉमन रहता है, उनके कॉमन डिसेंट्स रहते हैं। ओके, सो ऑर्डर दस इज अ स्टेप अबव फैमिली इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो मेंबर्स बिलोंगिंग टू सेम ऑर्डर बट डिफरेंट फैमिलीज मे शो वेरी फ्यू डिसिमिलैरिटीज। ओके, नाउ for example, if we see, so Papaveracea, Brassicaceae, Caparidaceae, etc. These are some family with parietal placentation. अब parietal placentation मतलब क्या होता है? Yes, only for this purpose I have explained you that diagram of ovary. अब यहाँ पे आप देखोगे तो parietal placentation मतलब क्या? Parietal means something related to periphery, outer side. ओके, आउटर नॉट यू कैन से यहाँ पे आउटर सरफेस नहीं, इनर सरफेस के साइड ही प्रेजेंट है, बट जो वॉल है वो पूरा बाहर ही है ना, ऐसा सेंटर में तो नहीं प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे जो ओव्यूल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वॉल पे अटैच है। कहाँ पे अटैच है? इनर वॉल पे अटैच है। सो जब भी ओव्यूल पेरीफेरी पे अटैच रहेगा, मीन्स वॉल पे अटैच रहेगा, तो इट इज सेड टू बी एज अ पैराइटल प्लेसेंटेशन। अगर आपने भिंडी में देखा होगा तो भिंडी में वो जो सीड्स रहते हैं वो उसकी वॉल पे प्रेजेंट होते हैं क्या? वॉल पे अटैच रहते हैं? नो, इट इज अटैच्ड टू दी सेंटर। एक बड़ी सी वाइट कलर की डंडी जैसे स्ट्रक्चर रहता है, उसमें ही वो सारे सीड्स अटैच होते हैं। सो दैट इज व्हाट? दैट इज अ एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक एक्सिल होती है, उसमें सब सीड्स अटैच होते हैं सेंटर में, सो दैट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। बट वी आर फोकसिंग ओवर हियर ऑन पैराइटल प्लेसेंटेशन विच इज एग्जाम्पल ऑफ दिस, जो कि ये सारी फैमिलीज में प्रेजेंट होता है। ओके, जस्ट बिकॉज कि इसके जो ओव्यूल्स हैं वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट हैं, सो ये कौन से ऑर्डर में बिलोंग करेगा? पैराइटल्स। ओके, द ऑर्डर विल बी पैराइटल्स। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि कभी भी ऑर्डर जो है लास्ट में एल्स से एंड होगा। ALES क्या रहेगा ऑर्डर में? ALES। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर इटसेल्फ कि ये जो सारी फैमिलीज है पैराइटल्स ऑर्डर में बिलोंग करती हैं। सो पैराइटल्स यू कैन सी कि यहाँ पे भी एल्स यूज किया है, ALES। So this is one of the important thing. Now families of dogs and cats, though they are different, they belong to same order. Which order? That is Carnivora.